Very good morning to all the students of class 10. As before, I have taught you all about the functions of the large intestine and about salivary glands, small intestines, gastric secretions in the stomach. Now today we are going to deal with the process and the psychology of the digestions. Now, what is digestions? What is digestions? Digestion is a series of physical and the chemical changes by which the complex food is converted into simple and absorbable form by the actions of enzyme. That means digestion is a series of physical and the chemical changes. There is a lot of changes during the process of digestion. First we take food through our mouth, and then it is absorbed, and the absorption is done by the actions of enzymes. So then it is digested, and the three regions mainly take place in digestions, mainly take place in three regions, namely the buccal cavity, stomach and intestine. Digestions take place here, where it take place in buccal cavity, stomach and intestine. Now we come, here you can see the layout and the working of the digestive system in human being. First of all, the food enters through our mouth. Okay. Oral cavity, then tongues play a very vital role, and teeth also. Tongues help in mixing the food with saliva and help in swallowing. Teeth masticate food and mix it with saliva. That means with the help of teeth we can chew the food. We can break the food into smaller pieces. Then again what happened? It goes to the pharynx. Connect oral cavity with oesophagus. This pharynx connect it to the oesophagus. This oesophagus, what is the function of oesophagus? By the process of peristalsis, it passes the food to stomach. Okay. Oesophagus, what is the function of oesophagus? By the process of peristalsis, it helps the food to pass to the stomach. Means peristalsis, एक पैसेज जो स्टमक में है, पुश करना फूड को. ओइसोफेगस का वर्क है फूड को पुश करता है स्टमक में. ओके. नाउ वी विल कम टू दैट स्टेप ऑल्सो. नाउ स्टमक होल्ड food for some time, produces gastric juice which make food acidic, and protein digestions begin here. स्टमक में फूड कुछ देर के लिए रहता है और स्टमक produces gastric juices and which make food acidic and protein digestions begin here. अब गैस्ट्रिक जूस जो प्रोड्यूस होता है स्टमक में, वो फूड को क्या करता है? एसिडिक करता है, बनाता है, और जो प्रोटीन है उसमें स्टमक में वो डाइजेशंस हेल्प करता है डाइजेशंस को बिगिन करने में. ना इन स्टमक व्हाट हैपन्स? Now before that, first of all I would like to explain you about the salivary glands, which is present in the mouth, produces saliva that moistens foods and contain, and saliva का वर्क क्या है? मॉइस्ट करता है फूड को, and contain phytolin that digest starch. वहाँ पर भी डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ में. फर्स्ट
डाइजेशन तो स्टार्ट होता है माउथ से ही। अब जब ये स्टमक में आ जाता है फूड, देन व्हाट हैपेंस, लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियाज वर्क इसका शुरू होता है, वर्क स्टार्ट हो जाता है लीवर का। लीवर प्रोड्यूसेस बाइल, स्टोर विटामिन्स, मिनरल्स, रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल। What do bile produces? Liver produces, it produces bile। और इस बाइल में क्या है, स्टोर रखता है क्या, विटामिन्स, मिनरल्स, जो रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल को। गॉल ब्लैडर स्टोर बाइल्स, ये भी स्टोर करता है बाइल्स। पैंक्रियाज प्रोड्यूसेस पैंक्रियाटिक जूस विच हेल्प इन डाइजेशंस। Now then what next is, after stomach duodenum comes। Food mixes with bile, emulsifications of fats and oils। Now duodenum में क्या होता है कि फूड मिक्स करता है बाइल के साथ और फिर वहाँ पर emulsifications होता है किसका, फैट्स एंड ऑयल्स का। देन कम्स द जिजुनम। आफ्टर दैट जिजुनम के बाद इलम में सेंड करता है। इलम का क्या वर्क है, सेक्रीट्स इंटेस्टाइनल जूस, डाइजेशन कंटिन्यू, कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब थ्रू विली। इलम में विली होता है जस्ट लाइक हेयर, और वो सेक्रीट्स करता है इलम इंटेस्टाइनल जूस, जहाँ पर डाइजेशन तो है ही कंटिन्यू में। और हम लोग ये देख लें कि जिजुनम, इलम और सीकम, ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, यहाँ पर होता है डाइजेशंस। आफ्टर दैट सीकम में जाता है इलम से। आफ्टर सीकम कॉलन में जाता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट हो गया। एब्जॉर्प्शंस ऑफ वाटर होता है वहाँ पर। रेक्टम में होल्ड अनडाइजेस्टेड मैटर, डिफेकेशंस ना, अनडाइजेस्टेड मैटर रेक्टम से जो भी अनडाइजेस्टेड है वो वहाँ पर कलेक्ट हो जाता है। उसके बाद अनस से वो बाहर पास आउट कर जाता है। तो यू हैव सीन हियर कि व्हाट हैपन, फर्स्ट फूड एंटर थ्रू आवर माउथ, टंग हेल्प करता है उसको सलाइवा में मिक्स करने के लिए। आफ्टर दैट टिथ च्यू करता है फूड को। सलाइवरी ग्लैंड होता है माउथ में, और वो सलाइवा जो निकलता है सलाइवरी ग्लैंड से, दैट मॉइस्चन्स द फूड एंड कंटेन द पिटेलिन दैट डाइजेस्ट स्टार्च। आफ्टर दैट वो फेरिंग्स में जाता है, फेरिंग्स से फिर ओइसोफेगस में जाता है। ओइसोफेगस हेल्प करता है फूड को विद थ्रू द पेरिस्टालाइसिस प्रोसेस से वो जाता है स्टमक में। स्टमक में गैस्ट्रिक जूस होता है और जिससे फूड एसिडिक हो जाता है और वहाँ पर डाइजेशंस भी होते हैं। उसके बाद डिओडेनम में जाता है। फूड मिक्स विद बाइल्स, बाइल्स से मिक्स कर करके इमल्सिफिकेशंस ऑफ फैट्स एंड ऑयल होता है डिओडेनम में। आफ्टर दैट जेजुनम में जाता है एंड आफ्टर जेजुनम इलम। इलम सेक्रेशन वहाँ पर होता है इंटेस्टाइनल जूस, डाइजेशंस कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब थ्रू विली। विली से डाइजेस्टेड फूड इसमें एब्जॉर्ब कर जाता है। आफ्टर दैट वो सीकम में जाता है। उसके बाद कॉलन एब्जॉर्ब करता है वाटर। आफ्टर दैट रेक्टम, रेक्टम क्या करता है, होल्ड करता है अनडाइजेस्टेड मैटर, जो कि फिर एनस में जाता है और वहाँ से वो पास आउट कर जाता है। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशंस। नाउ फर्स्ट स्टेप, feeding and ingestions. Ingestions में the digestions of the food in the human being begin by ingestions in the mouth and breaking it down into the buccal cavity. Here the teeth chew and masticate the food into smaller pieces. This is called mechanical digestions. The tongue has taste buds on it. It helps in tasting the food. Now ingestion में first process क्या है इसका भाई? फर्स्ट प्रोसेस हो गया इंजेशंस। डाइजेशंस का फर्स्ट प्रोसेस इंजेशंस हो गया। डाइजेशंस ऑफ फूड ह्यूमन बिगेंस कहाँ करता है, माउथ में। वहाँ ब्रेकिंग डाउन होता है फूड्स का बकल कैविटी में, जहाँ कि वो फिर
द फूड को च्यूतित करता है और मैस्टिकेट करता है इनटू स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर देता है, और उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल डाइजेशंस। टंग हेल्प करता है टेस्ट में, बिकॉज उसमें एक टेस्ट बड होता है, तो फूड का टेस्टिंग टंग में ही होता है। नाउ सेकेंड इज digestions. Digestions in the buccal cavity. The salivary gland pours saliva into the buccal cavity. Mucus in the saliva moistens the food for easy swallowing. अब अगर फूड माउथ में जाता है और अगर उसमें सलाइवा नहीं होता तो फूड मोशन मीन्स पानी जैसा नहीं होता, नर्म नहीं होता, और फिर हम लोग उसको स्वालो नहीं कर सकते। तो वो फूड जो बकल कैविटी में सलाइवा के हेल्प से मॉइस्चन होता है, भींग जाता है, और वो ईज़िली हम लोग स्वालो कर सकते हैं, निगल सकते हैं। द सलाइवा कंटेन एन एंजाइम salivary amylase or petalines which break down starch and complex carbohydrate into simple sugar maltose. अब सलाइवा में what is present? salivary amylase और पेटेलिन्स प्रेजेंट होता है। तो वो क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को एंड कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को इनटू सिंपल शुगर माल्टोस में। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करता है शुगर माल्टोस में, सिंपल। स्टार्च एंड द कम्प्लेक्स शुगर को ब्रेक करता है माल्टोस में। द फूड इज पास टू द ओइसोफेगस. Oesophagus is lined internally with mucus secreting cell. Mucus help in sleeping the food down. Mucus help in sleeping the food down. The food is passed to the oesophagus. Food कहाँ पास करता है? Oesophagus में पास करता है। और oesophagus is lined internally with mucus secreting cell. Mucus help in sleeping the food down. Sleeping the food down means food को नीचे पहुँचाने में वो वर्क करता है। Now digestion in stomach. From oesophagus the food passes to the stomach. Here the food is received, stored, curbed and mixed with gastric juice. Okay, here what happens? Breaking होता है, रिसीव करता है स्टमक में फूड, और वहाँ पर चर्निंग होता है, चर्न। हियर द फूड इज रिसीव्ड, स्टोर्ड, चर्न एंड मिक्स विद द गैस्ट्रिक जूस। वेयर? इन स्टमक. द गैस्ट्रिक ग्लैंड विच आर प्रेजेंट इन द स्टमक secrete gastric juice which contain gastric enzyme, mucus and acid. अब स्टमक में गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो प्रेजेंट होता है स्टमक में, उसमें गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होता है। ये गैस्ट्रिक जूस क्या कंटेन करता है? गैस्ट्रिक एंजाइम्स, म्यूकस एंड HCl. ओके, गैस्ट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स एन एसिडिक मीडियम विच इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी ऑफ गैस्ट्रिक एंजाइम पेप्सिन. अब गैस्ट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, इसमें क्या होता है? एसिडिक मीडियम में वो गैस्ट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स एन एसिडिक मीडियम विच इज़ एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी ऑफ गैस्ट्रिक एंजाइम. गैस्ट्रिक एंजाइम जो प्रेजेंट होता है स्टमक में, इसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है गैस्ट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स. इट ऑल्सो क्या करता है? वो किल करता है बैक्टीरिया which might have come along with the foods and dissolve mineral salt. जो भी बॉडी में स्टमक के अंदर बैक्टीरिया है उसको भी वो किल करता है, गैस्ट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स. इट ऑल्सो एक्टिवेट्स पेप्सिनोजेन टू पेप्सिन. पेप्सिनोजेन जो इनएक्टिव है उसको HCl एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है. पेप्सिन इज़ अ गैस्ट्रिक
protease, an enzyme which break down protein into proteoses and peptones. Very important function. Pepsin in a gastric is a gastric protease. पेप्सिन जो है वो क्या करता है? एन एंजाइम जो ब्रेक करता है प्रोटीन को इनटू प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स. पेप्सिन क्या करता है? ब्रेक करता है प्रोटीन को इनटू प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स. ओके, प्रोटीन को कौन ब्रेक करता है? पेप्सिन. ओके, नाउ अब पेप्सिन तो ब्रेक कर दिया. आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस? नाउ कम्स द HCl. HCl also activates प्रोटीनिन टू रेनिन. HCl एक्टिवेट करता है प्रोटीनिन जो इनएक्टिव है उसको रेनिन में जो एक्टिव है. रेनिन कन्वर्ट कैसिनिन ऑफ मिल्क इनटू पारा कैसिनिन proteins which is further digested by pepsins. Now you can see रेनिन कन्वर्ट करता है किसको? कैसिनिन को पारा कैसिनिन में. ओके, विच इज़ फर्दर डाइजेस्टेड बाय पेप्सिन. कौन डाइजेस्टेड होता है? कैसिनिन ऑफ मिल्क इनटू पारा कैसिनिन जो कि एक प्रोटीन है विच इज़ फर्दर डाइजेस्टेड बाय पेप्सिन. पेप्सिन इस प्रोटीन को फिर डाइजेस्ट करता है. The partial digestion of the food in the stomach reduces food to a paste-like form called chyme. The partial digested food in the stomach reduces food to a paste. तो जो स्टमक में पार्शियल डाइजेशन होता है उसको फिर क्या करता है? उसको रिड्यूसेस करता है टू पेस्ट लाइक फॉर्म कॉल chyme. पेस्ट लाइक बना देता है. दैट इज कॉल्ड chyme. समटाइम व्हेन आवर स्टमक इज ओवरफिल्ड विथ फूड द कार्डियक sphincter present at the front end of the stomach opens due to reserve wave of muscular contractions that result in the throwing out of content through our mouth, yes, known as vomiting. कभी कभी देखा है कि मुंह से भी निकल जाता है. जब हम लोगों का ओवर फिल्ड होता है स्टमक तो मुंह से कभी कभी वोमिटिंग जैसा हल्का निकलता है. तो वो क्या है? इसमें होता क्या है कि द कार्डियक स्पिंचर जो है वो फ्रंट एंड ऑफ स्टमक में वो प्रेजेंट होता है कार्डियक स्पिंचर. और ड्यू टू द रिवर्स वेव ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्ट जो करता है उससे क्या होता है? रिजल्ट इन द थ्रोइंग आउट ऑफ द कंटेंट. अब जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हुआ उसके थ्रू जो भी माउथ से हमारे वो थ्रो आउट कर देता है और उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? वोमिटिंग. वो हल्का सा वोमिटिंग जो निकल जाता है रिवर्स वेव ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस के वजह से. जब ओवरफिल्ड हम लोग हमारा स्टमक रहता है विथ फूड से भरा रहता है, ओवर भरा रहता है, तो जो कार्डियक स्पिंचर होता है प्रेजेंट कहाँ प्रेजेंट होता है? स्टमक के फ्रंट में, फ्रंट एंड ऑफ द स्टमक में. वो ओपन करता है ड्यू टू द रिवर्स वेव ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से और फिर वोमिटिंग हो जाती है थोड़ा सा. डाइजेशंस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. In the intestine, the food is digested and absorbed completely. The digestions and the absorptions of the food take place in the small intestine. In the small intestine, food mixed with bile juice, pancreatic juice and intestinal juice. इस स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशंस एंड अब्जॉर्प्शंस ऑफ फूड होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड मिक्स कर जाता है किसके साथ? बाइल जूस के साथ, पैंक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस के साथ. इन डिओडेनम द फूड इज साइमल्टेनियसली एक्टेड अपॉन बाय द बाइल, पैंक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल juices. Since these secretions are alkaline, the acidity of the chyme is neutralized
and pepsin is inactivated. Now duodenum में क्या होता है? फूड जो है किससे एक्टेड होता है? बाइल, पेंक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल जूसेस से, और ये सब क्या होता है? अल्कलाइन होता है. तो एसिडिटी ऑफ द चाइम जो है ये न्यूट्रलाइज हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि वो बाइल, पेंक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल जूस अल्कलाइन होता है, लेकिन एसिडिटी अब ये जो चाइम का जो एसिडिटी होता है वो अल्कलाइन से मिक्स करके क्या होता है? न्यूट्रलाइज कर जाता है, और पेप्सिन जो है इनएक्टिवेट होता है. ओके, नाउ द एक्शन, व्हाट इज द एक्शंस ऑफ बाइल? Bile is a yellowish green watery fluid in the liver and transported through the bile duct leading to the duodenum. Bile कौन से कलर का है? It is a yellowish green fluid, watery fluid type, produces in the liver and transported through bile duct leading to the duodenum. Now transported through bile duct, अब वो किधर से जाता है? ट्रांसपोर्ट होता है बाइल डक्ट से. कहाँ जाता है? डिओडेनम में. बाइल इज डिवॉइड ऑफ एंजाइम्स. इट कंटेन द बाइल पिगमेंट्स एंड बाइल सॉल्ट. द बाइल सॉल्ट हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन ऑयल ड्रॉपलेट्स इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स, forming a milky emulsifications to facilitate further digestions of fats. Now बाइल सॉल्ट हेल्प करता है ब्रेक डाउन करने में ऑयल ड्रॉपलेट्स को. बाइल इज विच कलर? इट इज़ अ येलोइश ग्रीन वाटरी फ्लूइड, और ये प्रोड्यूस होता है लीवर में. वेयर इट इज़ प्रोड्यूस? इट इज़ प्रोड्यूस इन द लीवर एंड देन इट इज़ ट्रांसपोर्टेड थ्रू बाइल डक्ट टू द डिओडेनम. बाइल में एक एंजाइम होता है जो कंटेन करता है बाइल पिगमेंट्स एंड बाइल सॉल्ट. बाइल सॉल्ट का वर्क है कि वो हेल्प करता है इन ब्रेकिंग डाउन ऑयल ड्रॉपलेट्स इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स. ऑयल ड्रॉपलेट्स को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करता है. व्हाट? बाइल सॉल्ट. फॉर्मिंग अ मिल्की इमल्शंस टू फैसिलिटेट फर्दर डाइजेशंस ऑफ फूड. दैट मीन्स ये हेल्प करता है डाइजेशंस ऑफ फैट में. ओके, ये हेल्प करता है डाइजेशंस ऑफ फैट में. आफ्टर दैट द एक्शंस ऑफ पैंक्रियाटिक जूस. पैंक्रियाटिक जूस इज प्रोड्यूस्ड बाय पैंक्रियाज. पैंक्रियाटिक जूस को कौन प्रोड्यूस करता है? पैंक्रियाज. द पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन इनटू द डिओडेनम and pour their secretion there. There are 4 enzymes present in the pancreatic juice. अब pancreatic juice produces by the pancreas. pancreas जो होता है वो produce करता है pancreatic juice. अब ये pancreatic duct open होता है duodenum में, और ये secretion को वहाँ पोर करता है, वहाँ पर डाल देता है. ये 4 एंजाइम प्रेजेंट होता है पैंक्रियाटिक जूस में. वो कौन कौन सा है 4 एंजाइम्स? ट्रिप्सिन्स, काइमोट्रिप्सिन्स, एमाइलेज एंड लिपेस. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ट्रिप्सिन्स. नाउ